Okay, so I guess this will be our last mock test before BitSet. So I hope this series has been helpful to you guys. Okay. Other than that, I might come up with a formula series like wherein I tell you a few important formulas that are needed. And in case I'm not able to do, आपको कुछ भी बुकलेट मिल जाएंगे, अरिहांत होगा, एलन का होगा, रेजोनेंस का होगा, ठीक है. यूज़ दैट टू योर बेस्ट एडवांटेज, ठीक है. So yeah, it's been fun. If you have any kind of doubts or anything, Telegram group है, YouTube comment section है, ठीक है. Just comment there and ask your doubts, ठीक है. So without any further ado, let's get started. Alright then, let's get started, ठीक है. Question 1. A physical quantity A is related to 4 observables A, B, C, D as follows, ठीक है. Percentage error is given. What is the percentage error in A, ठीक है. So for this, there is a very basic formula in with respect to errors that is given by this. Delta A by A will be twice delta A by A plus thrice delta B by B. यहाँ पे जो भी power है ना, this one, that just becomes the coefficient here. एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है, एरर डिक्रीज नहीं होती है. तो हालांकि यहाँ पे -1 होना चाहिए था, बट सिंस एरर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव सो प्लस हो जाएगा. डेल्टा सी बाई सी प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी. अब क्योंकि परसेंटेज चाहिए, बस हमें इंटू 100 कर देनी चाहिए एवरीवेयर, ठीक है. दिस विल बी डन एवरीवेयर. सो इन द एंड व्हाट वी गेट इज 2 + 9 + 2 + 1 विच इज़ 14%, ठीक है. So option D. Next, at t equals to 0, an arrow is fired vertically with the speed of this much. Second arrow is fired vertically with the same speed at t equals to 5. Then, okay, so here let us do this. Two arrows will be the same height above the ground at t equals to 10 seconds. Okay? So let us use relative motion for now. Okay? So you have 98 and you are, no, you will come later, right? So t equals to 5 पे आपकी velocity क्या होगी? V equals to u plus a t. अच्छा ठीक है, 5 मान लेते for now, and t will be 5, so 25. So approximately it's going to be like 73, ठीक है. So your velocity will be रुको एक मिनट ना, v equals to u plus a t, sorry, हाँ ठीक है. So it will be somewhat like this. Okay, so question 2. An arrow is fired vertically upwards with the speed of this much. A second arrow is fired vertically upwards with the same speed at t equals to 5, ठीक है. Then the two arrows will be at the same height. अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं. So at time t equals to 0 आपकी velocity कितनी थी? 98 है ना. तो at t equals to 5 आपकी velocity कितनी होगी? v equals to u plus a t है ना. So that's actually going to be 49, so 49, ठीक है. So at t equals to 5 आपकी velocity ऐसी होगी. This is suppose ground, 49 meters per second, and the other body will be here with 98 meter per second. And height check करने के लिए let us do something like this. S equals to ut plus half at squared होती है. So 98 into time में 10 लगा दो, minus 50 into 9.8, so 980 minus 490, ठीक है, which is again 490, ठीक है. तो ये 490 मीटर्स पे है फिलहाल. नाउ इफ़ यू अप्लाई रिलेटिव मोशन, ये आपका रेस्ट पे हो जाएगा, ये 49 पे जा रहा है एंड नथिंग एल्स, दिस यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. लाइक जी कैंसिल हो जाएगा, जी नीचे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, टेक सच ए फ्रेम सच दैट इट गेट्स कैंसल्ड आउट. So this is basically the net situation right now. So will be the same height at t equals to 0, t equals to 10, मतलब from here 5 seconds ना. So 5 seconds पे ये बस इसका हाफ तक पहुँचेगा. So ये तो ऑप्शन गलत है. Will return back to the starting points. अभी टाइम ऑफ, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है विथ सेम स्पीड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा. तो टाइम डिफरेंस बस 5 सेकंड का, यहाँ पे 10 सेकंड है, ये भी नहीं होगा. लास्ट वाला देखते हैं. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय आइदर एरो विल बी 980. तो मतलब यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी देख लो, वो मैक्सिमम हाइट होती है. तो 98 इंटू 98 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8 होगी, सो 490 हो जाएगी. सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो क्लियरली बाई एलिमिनेशन ऑप्शन सी हो जाएगा. अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो. मतलब सपोज ये करनी है ना, हाँ टी इक्वल्स 20 पे जानी है, तो पहले वाले का क्या होगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. नीचे वाले क्या होगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए. और क्योंकि वो 15 सेकंड के लिए होगा, क्योंकि -5, तो बस अभी इसका रेशो निकालनी है आपको. तो इसको आप ऐसे पकड़ लो, 98 1.5, 98 इंटू 2, ठीक है.
तो ये 98 इंटू -1 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी डिवाइड बाई 98 इंटू माइनस हाफ, सो विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी 2/1, सो 2:1 आ रहा है. बट कभी कभी जस्ट यू नो सेफ टाइम आप इस मेथड से जाना प्रेफर कीजिएगा कि मतलब बाय एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है सी होगी. ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो इफ़ यू हैव ए प्रॉपर स्पीड तो जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3. फॉर ए गिवन वेलोसिटी a projectile has the same range r for two angles of projection. If t1 and t2 are the times of flight in the two cases, then अच्छा, सो एक बात है, सेम रेंज आर कब होगी. अभी रेंज की फॉर्मूला अगर आपको याद है, सम कांस्टेंट इंटू साइन 2 थीटा थी, है ना. सो अगर हम लोग एक θ1 रखें और दूसरे को π/2 माइनस θ1 रखें, तो साइन 2 थीटा क्या होगी, यहाँ पे 2 θ1 होगी, यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस 2 θ1 विच इज़ साइन 2 θ1. सो दोनों इक्वल हो रही है, तो रेंज विल बी इक्वल जब द एंगल्स आर थीटा एंड π/2 माइनस थीटा, है ना. तो अभी आपको पूछा जा रहा है, इफ़ दैट इज़ द केस देन टाइम ऑफ फ्लाइट अगर t1 t2 है, देन तो टाइम क्या होता है, ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी, तो साइन थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो साइन थीटा 1. t2 क्या होगी, साइन थीटा 2, जो यहाँ पे आपका साइन ऑफ π/2 माइनस θ1 होगा विच इज़ कॉस थीटा 1. ठीक है, तो फिर आपको पूछा गया है t1 t2 का प्रोडक्ट जो होगा. सो t1 t2 कैन बी रिटन एज साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता है, तो सॉरी कॉस थीटा 1 हो जाएगा. अभी अगर हम यहाँ पे कुछ इक्वल टू करके कांस्टेंट मार दे, तो बाई टू करने से फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा, और ये साइन 2 θ 1 हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस साइन 2 θ 1 है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन, रेंज आर. सो t1 t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन ए. अभी क्वेश्चन नंबर 4. ए रॉकेट ऑफ मास दिस मच एग्जॉस्ट गैसेस एट द रेट ऑफ दिस मच. ठीक है, वेलोसिटी इतनी है, थ्रस्ट डेवलप. थ्रस्ट बेसिकली फोर्स होती है, फोर्स इज एम ए जो लिखते हैं ना, वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं है. एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. तो अगर आपका एम वी होता है ना, तो ये बाई डी टी होती है. सो ये जो होगा एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, है ना. नॉर्मल केसेस में क्या होता है, मास कांस्टेंट होती है, तो ये ज़ीरो हो जाती है, और ये आपका एम ए होता है, इसलिए होती है. बट इस केस में जैसे देखिएगा, मास चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमारा ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, और रादर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा. तो लगा दीजिए फॉर्मूला डायरेक्ट. V is actually going to be 3000, dm by dt is 4, so it's 12,000 newtons, so option A. ठीक है, चलो. Alright then, so question number 5. ठीक है, so a block is kept on a frictionless inclined surface. ठीक है, इतनी एक्सेलरेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, देन A इज इक्वल टू, मतलब अगर इट हैज़ टू बी रिमेन स्टेशनरी, है ना. तो इस पर अभी सूडो फोर्स लगाए थे, लाइक इधर A लगेगा. सो अगर A ये है, ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पे A कॉस अल्फ़ा लगेगा, A कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे A साइन अल्फ़ा, है ना. और नॉर्मल तो G लग रहा है, तो G की वजह से यहाँ पे G साइन अल्फ़ा होगा, और नॉर्मल पे आपका होगा G कॉस अल्फ़ा. ठीक है, अभी नॉर्मल वाला पोर्शन जो है, ये तो आपका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो बैलेंस आउट कर देगा. यहाँ पे जो है नेट फोर्स, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम पे है, तो ज़ीरो होना पड़ेगा. इसका मतलब क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दे मस्ट बी इक्वल, कोई और फोर्स तो है नहीं. तो इसका मतलब डायरेक्टली ए कॉस अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू जी साइन अल्फ़ा. सॉरी यार, फिर से टेढ़ा लिख रहा हूँ, कैंट हेल्प इट, मतलब बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मतलब टैब पे तो उल्टा हो रहा है. एनीवे, तो ए कम्स आउट टू बी जी टेन अल्फ़ा. ठीक है, तो डायरेक्टली ऑप्शन डी. नेक्स्ट, ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 kg एक्सप्लोड्स. ठीक है, 2 ऑफ द पीसेस फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल्स. ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है. इफ द एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस इन दिस, द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड पीस. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इट वाज ओरिजिनली स्टेशनरी, इसका मतलब ये है कि नेट मोमेंटम इनिशियली ज़ीरो था, फाइनली भी ज़ीरो होगा. इसका मतलब ये है कि क्योंकि 3 है और इक्वल मासेस है, तो सबका 1 kg होगा. ठीक है, तो तुम्हारा अभी फाइनल मोमेंटम क्या है, इतना है, तो थर्ड पीस का मोमेंटम क्या होगा, माइनस ऑफ दैट, तभी जाके ज़ीरो होगा. ठीक है, तो आपका माइनस ऑफ दिस है, और फोर्स क्या होता है, डी पी बाई डी टी. आपको डी पी तो मिल गई है, मतलब इनिशियली क्या थी, ज़ीरो थी, फाइनली क्या हो गई, ये है. तो डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज़ यही इट सेल्फ, माइनस ट्वाइस लाइक दिस. एंड बाई डी टी कितना बोला है, 10⁻⁵, तो डिवाइड बाई 10⁻⁵, विच इज़ माइनस ऑफ ट्वाइस आई प्लस थ्राइस जे इंटू 10⁻⁵. सो ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A ball of mass m moving with a velocity v undergoes an oblique elastic collision with another ball of same mass. ठीक है, but at rest. ठीक है, आफ्टर कोलिजन ऑफ द टू बॉल्स मूव विद डिफरेंट स्पीड्स, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी. ठीक है, तो एक चीज़ होता है, सिंस दे हैव ऑलरेडी सेड इट्स इलास्टिक कोलिजन, है ना,
ऑब्लिक कोलिजन मतलब ये है कि जो वेलोसिटीज़ है वो लोग सेंटर ऑफ इनके जो सेंटर्स को जॉइनिंग है ना उसके अलोंग नहीं है, मतलब ऐसा कुछ होगा, लाइक बॉडी ऐसे कुछ जा रही है बट सेंटर लाइन ये है, ठीक है, दैट्स ऑब्लिक कोलिजन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज इलास्टिक कोलिजन इज द बेस्ट केस, मतलब यहाँ पे आपका एनर्जी मोमेंटम जो बोलना है बोलो, मतलब जीरो डिफॉर्मेशन, कंप्लीट रिफॉर्मेशन, रिस्टोरेशन सब कुछ होता है। एंड एट द सेम टाइम ये भी याद रखो, एकदम आइडियल केस है ना, तो कोई भी टाइप का कोलिजन हो, मतलब ऑब्लिक की बात बोल रहा हूँ, तो ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन होने से द एंगल ऑफ सेपरेशन विल ऑलवेज बी 90s, तो इसका आंसर एग्जैक्टली 90 होगा हमेशा, ऑलवेज, इफ इट इज़ एन इलास्टिक कोलिजन एंड ऑफ कोर्स हैज टू बी ऑब्लिक, है ना। हेड ऑन पे तो भाई इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में ही चलेगा, इधर तो कुछ है नहीं, ऑब्लिक होने से वो होगा 90 डिग्रीज। फाइन, नेक्स्ट, a ball of mass 150 moving with acceleration of this is hit by force, the impulsive force is, अभी impulsive force मतलब यूनिट्स देख लो यार, NS दिया है, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड मतलब इम्पल्स होता है, ठीक है, तो इम्पल्स बेसिकली निकालने को बोला है, ऑल दो फोर्स बोला है, यूनिट्स देख लेना चाहिए, ठीक है, कभी कभी थोड़ी मिसलीडिंग होते हैं, तो तुम्हें इम्पल्सिव फोर्स बोला है, सो डी पी बाई डी टी इज़ गोइंग टू बी अ फोर्स, इम्पल्सिव मतलब बेसिकली डी पी देखना है, तो एफ इंटू डी टी होगा, आपका एफ कितना है 150/1000 इंटू 20 इंटू 0.1, तो आपका इधर 15/100 इंटू 2 हो जाएगा, तो आपका 30, तो 0.3 हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन बी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a particle of mass m moves on x axis under the influence of force, ठीक है, वो सब ठीक है, given by this expression starts at a, the speed it will attain after reaching a point at x, ठीक है, तो अभी f इक्वल्स -k/x² है, ठीक है, I मतलब जिस डायरेक्शन बोला है नन ऑफ आवर कंसर्न, ठीक है, तो f को हम बेसिकली एम ए लिख सकते हैं, तो इसको हम नीचे लेके चले जाएंगे, a हो गया, अभी आपको पता होगा a को हम v/dv/dx भी लिख सकते हैं। अभी आप पूछोगे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, पोजीशन का डिपेंडेंस है, तो यही एक रिलेशन होती है, सो अभी हम सीधा अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, तो v/dv इज़ -k/m dx/x², है ना, तो अभी इंटीग्रेट कर देते हैं, चलो v को हम कहाँ से करेंगे, डिस्टेंस a पे ही है, रेस्ट पे था ना, तो x अगर a है तो ये 0 था, और फाइनल सपोज v है एट सम x, ठीक है, तो v²/2 इज़ -k/m, -1/x होगी शायद, हाँ ठीक है, और माइनस माइनस तो भाई कैंसिल ही हो गया, तो आपका बस ये है, इसको x और इसको a ऐसे लिख सकते हैं, k/m 1/x - 1/a, ठीक है, तो v² कैन बी रिटन एज ट्वाइस k/m a - x डिवाइडेड बाई ax, सो v विल बी रिटन एज दिस, तो √ओवर ट्वाइस k/m a - x/ax का रूट, तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन 10, वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ इतना दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, फिक्स्ड एट ग्राउंड, अदर इज फिटेड विद स्मूथ रिंग, ठीक है, अलाउड टू स्लाइड एंड स्टफ, इनिशियल स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्रीज विद द वर्टिकल व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, स्पीड ऑफ रिंग व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, ठीक है, तो अभी इसके पास क्या एनर्जी है, क्योंकि ये ओरिजिनल लेंथ h है, अभी कुछ ज़्यादा होगा, वो भी h/cos 37 से, ठीक है, और मतलब 1/, दे के रखा है, तो 1.25 h है, तो कुछ एनर्जी होगी, पोटेंशियल की तो डिफरेंस नहीं आ रही क्योंकि सेम लाइन पे है, तो बस काइनेटिक की आएगी, अभी एनर्जी इज़ कंजर्व्ड इन दिस केस क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, सारे इंटरनल फोर्सेस है, नॉर्मल वो सब, तो जब ये वर्टिकल हो जाएगा तब इसकी जो एनर्जी होगी वो प्योरली काइनेटिक होगी, विल बी इक्वल टू अभी जितनी एनर्जी है विच इज़ हाफ k इंटू एक्सटेंशन स्क्वायर्ड, एक्सटेंशन कितना होगा 1.25 - 1 इंटू h का स्क्वायर्ड, ठीक है, सो हाफ k 1.25 h² हो जाएगा, 0.25 मतलब क्या 1/4, तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है, हाफ कैंसिल कर सकते हैं, और हमें चाहिए क्या, स्पीड ऑफ द रिंग, राइट, सो v² कैन बी रिटन एज k/m h²/16, और v कैन बी रिटन एज h/4 √ओवर k/m, सो ऑप्शन डी, ये सब में बाय हैं, हाँ मतलब रूट के अंदर ही बाय है, ठीक है, सो ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, A solid cylinder of mass m radius r rolls down inclined plane h, angular velocity of cylinder when it reaches bottom of the plane, भाई बहुत ही आसान है, एनर्जी कंजर्व हो रही है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी बोले मतलब ये रोल कर रहा होगा, जब बॉटम पे आएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगा नहीं, जो है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक मतलब कौन सा, रोलिंग वाला है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है ना, एक तो रोटेट भी कर रहा है प्लस ही नीचे भी जा रहा है, तो दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, तो फाइनल में वो दोनों एनर्जी होगी, एंड इनिशियली यू हैड पोटेंशियल एनर्जी, सो पी ई मस्ट बी इक्वल टू के ई,
mgh मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वाड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वाड, है ना। आई को आप बेसिकली क्या लिख सकते हो, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एम आर स्क्वाड बाई 2, और ओमेगा को हम वी बाई आर लिख सकते हैं, तो वी स्क्वाड बाई आर स्क्वाड, क्योंकि प्योर रोलिंग है ना, तो इसको हम 3/4 एम वी स्क्वाड लिख सकते हैं। तो एम कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या अभी, क्या चाहिए आपको, एंगुलर वेलोसिटी ना, तो 4gh/3 हो गया रूट के अंदर, दैट इज़ बेसिकली योर v, और हमें 1/r चाहिए होगा, v/r दैट इज़ ओमेगा। सो आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, ये 2/r √/gh/3, तो ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सो ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट ऑन द सर्फेस ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास दिस मच, रेडियस इतना है, वर्क टू बी डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू टेक द पार्टिकल अवे, ठीक है। तो अभी पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं, तो इनका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, इतना। अभी फाइनल जब सेपरेट करोगे तो जीरो हो जाएगी, तो वर्क डन कितना होगा, माइनस ऑफ दिस, मतलब प्लस ये करने से जीरो होना है वर्क डन, तो वर्क डन विल बी माइनस ऑफ दिस विच इज़ दिस मच, वैल्यू पुट कर देंगे अभी सीधा, -11 है। मास में आपका m 10/1000 लगा दीजिए, इसमें 100, इसमें r को हम 10/100 लिख देंगे क्योंकि सारे SI में होनी है, तो इधर से फिर से 100 आ जाएगा, 100 कैंसिल, 10 हो जाएगी, 6.67 10⁻10 जूल्स, ठीक है। सीधा ऑप्शन डी, फाइन, गुड। सो अभी क्वेश्चन नंबर 13, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इन्वर्सली एज द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस, द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट विल बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो अभी अगर बात कुछ ऐसी है, तो बात कुछ ऐसी है, एफ इक्वल्स टू क्या होगा कि मतलब मान लो कुछ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर की पावर एन, है ना, ठीक है, इन्वर्सली टू द nth पावर ऑफ डिस्टेंस, और एफ को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन होगी ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एम वी स्क्वायर्ड बाई आर, तो ओवरऑल आपकी क्या होगी ये, तो इसको आर की पावर 1 - n लिख सकते हैं। मास कांस्टेंट है, तो इसको फिर से हम कुछ के डैश को नया कांस्टेंट मान लेंगे, रूट करेंगे वो भी कुछ नया कांस्टेंट बाई 2, तो वी ये होगा। हमें टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड क्या होता है 2/r/v, तो बेसिकली सम कांस्टेंट फिर से आ जाएगा, r डिवाइडेड बाई आर की पावर 1 - n/2 विच कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट इनटू आर की पावर 1 - 1 - n/2 विच इज़ 1 + n/2 r टू द पावर, ठीक है, सम कांस्टेंट इनटू, सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1/2, ठीक है, तो डायरेक्टली ऑप्शन बी आ गया आपका। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 2 rods ऑफ डिफरेंट मेटल्स गिवन, ठीक है, सेम एरिया सेम लेंथ, ठीक है, α1 α2 y1 y2 हीटेड बाई टी, द फोर्स एक्सर्टेड बाई वन रॉड ऑन द अदर इज, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हीट क्या है, डेल्टा L1 को कैसे लिख सकते हैं हम, वो फॉर्मूला होती है ना, L' इक्वल्स टू L इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी, तो हम L' - L इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा टी होता है, तो इसको हम डेल्टा L लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा L1 क्या होगा, L α1 टी, डेल्टा L2 क्या होगा, L α2 टी, तो डेल L1 + डेल L2 क्या हो जाएगा, मतलब क्योंकि हमें नेट इलॉन्गेशन चाहिए, LT α1 + α2, ठीक है। अभी अभी आपको ये बताओगे यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन कैसा होता है, y = F/s, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होती है, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट फोर्स, सॉरी, डेल्टा L इज़ गिवन बाई FL/AY, है ना। सो डेल्टा L1 इज़ FL/AY1, बाकी सब तो क्योंकि सीरीज़ में है तो आपका फोर्स भी सेम होगा दोनों का, एरिया लेंथ सब सेम बोला गया ऑलरेडी, तो डेल्टा 1 इज़ दिस, सॉरी डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2 इज़ दिस। तो अभी अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको नेट इलॉन्गेशन मिल जाएगा, तो नेट इलॉन्गेशन ऐसे लिख सकते हैं आप, FL/A 1/y1 + 1/y2 इज़ गिवन बाई LT α1 + α2, LL कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अभी डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपको क्या चाहिए, F चाहिए, तो AT α1 + α2 डिवाइड बाई 1/y1 + 1/y2, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, AT α1 + α2, दिस वन, ऑप्शन ए, नहीं एक मिनट, अच्छा ये एक्चुअली प्लस होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, तो ऑप्शन, तो 14 का आंसर ए, डन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 असर्शन स्टेटमेंट 2 रीजन, ठीक है, चूज द राइट ऑप्शन। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ट्यूब, है ना। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है रेनॉल्ड्स नंबर के साथ लिंक होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय ρ/v/d/ईटा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रेनॉल्ड्स नंबर ईटा डिवाइडेड बाई ρ/d, डी मतलब बेसिकली क्या होता है डायमीटर, सो उसको ट्वाइस इंटू रेडियस लिख सकते हैं, तो वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इज इन दैट व्हाट द सेड, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है इज इन्वर्सली रेडियस ऑफ द ट्यूब, तो ये तो सही है। स्टेटमेंट 2, वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए ट्यूब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द ट्यूब,
देर इज़ नो सच लॉ एज सच कि वो इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी. वेलोसिटी थ्रू ए ट्यूब इट मे बी एनीथिंग, मतलब सपोज यू हैव दिस वन v1 v2, तब जाके आपका एरिया का रिलेशन आता है. बट इन जनरल वेलोसिटी का एरिया के साथ कोई लिंक नहीं आएगा. और अगर आप क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करो तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है. तो ये तो गलत है. तो 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स. तो ऑप्शन सी होगा. ठीक है, आई गेस इसका आंसर डी दिया होगा विच इज़ रॉन्ग. ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास m is attached to a spring and has a natural angular frequency omega naught. अच्छा, an oscillator having a natural angular frequency omega naught is applied to the oscillator. The time displacement of the oscillator will be proportional to. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्सटर्नल ऑसिलेशन ये सब आके रखा है. ठीक है, तो इन जनरल इसके क्वेश्चंस आते हैं नहीं. मैक्स टू मैक्स अगर एकदम वर्स्ट के सिनेरियो में है ना तो वो डैम्पिंग वाली आती है. A = a नॉट e to the power b minus bt by twice m जो होती है ना एक रिलेशन, एनर्जी होने से 2 नहीं होगा. तो मैक्स टू मैक्स वो आती है, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते. बट जस्ट इन केस आ जाए आई विल जस्ट बी टेलिंग दिस. ठीक है, एक तो आप वो वैल्यू पुट करके ओमेगा को इन्फिनिटी पे 10 करके आप कर सकते हो. बट आई विल शो द प्रॉपर वे. ठीक है, नॉर्मली जब एक्सटर्नल फोर्स होता है इट मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी अलॉन्ग इट, रिस्टोरिंग जो होता है वो अपोजिंग है ना. तो आपका नेट एक्सेलरेशन अभी क्या, मतलब नेट फोर्स आपका क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन नॉर्मली क्या होता है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे नेट क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर जो एक्सटर्नल वाला है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, है ना. और बोला गया है जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस है. तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी मान सकते हैं. ठीक है, अभी एक्स जो होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि सब कुछ सिंपल हार्मोनिक है वो भी सिंपल हार्मोनिक ही होगा. अभी उसको हम सपोज मान लेते हैं हम कि वो एकदम एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है. ठीक है, तो टी इक्वल्स 0 पे वो क्या होगा, एक्सट्रीम पे होगा. तो मतलब ए कॉस ओमेगा टी टाइप का कुछ हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि टी इक्वल्स 0 पे मैक्स एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट पे है. तो सपोज हम वहाँ से मानते हैं तो इसको हम सम काइंड ऑफ ए इंटू कॉस ओमेगा टी मान सकते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम कांस्टेंट लगा सकते हैं. तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. सो एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय समथिंग बाय के बाय एम ओमेगा नॉट स्क्वायर्ड माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड. के तो कांस्टेंट है तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दिस लिख सकते हैं. तो ऑप्शन हमारा क्या, और हमें टाइम डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेटर विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी. वो सब तो सही है, एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा है मतलब. तो 1/m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो वो ऑप्शन हमारा बी है. ठीक है, अभी ये बस एक्स्ट्रा इन्फो के लिए बताया. एज सच मतलब इतना नहीं आना चाहिए. और सपोज आ भी गया तो आप थोड़ा वैल्यू पुट करने की सोच लेना. ठीक है, मतलब वो भी थोड़ा होता है ना कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे या फिर ओमेगा को इन्फिनिटी पे 10 कर देंगे ये सब. ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसे आप ऑप्शन में भी देख लो, अगर आपके इन्फिनिटी पे आता है ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है यार, यही एक सेंसिबल ऑप्शन है. तो यहाँ पे तो वो भी आप कर सकते हो. वरना सपोज कुछ प्लस ओमेगा स्क्वायर्ड माइनस ओमेगा स्क्वायर ये सब होता ना, तो आप ओमेगा को 0 इन्फिनिटी ये सब डाल के आप देख सकते थे. ठीक है, 0 से नहीं होता इन्फिनिटी मानना पड़ता. ठीक है, फाइन. तो क्वेश्चन नंबर 17. A small spherical steel ball is placed a little away from the center of a large concave mirror of radius this much. ठीक है, 2.5 meters. The ball is then released. Time period. अच्छा, बेसिकली ऐसा है. सिंपल पेंडुलम जब हम रिलीज़ करते हैं तो कैसा होता है, रेडियस सेम होता है, ऐसा जाता है ना. वही सिंपल केस है, बस यहाँ पे ये नहीं है बस बॉल को छोड़ दिया तो वो भी ऐसा ही जाएगा. हम एक इमेजिनरी पेंडुलम मान सकते हैं. स्ट्रिंग ऑफ रेडियस 2.5 जो है, लेंथ जितना है वो घुमा रहा है. तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2/√L/g. भाई यहाँ पे वही होनी है, एल की जगह आप आर बिठा दो, बस ख़त्म. सो 2/√R कितना है 5/2, जी कितनी है 10, तो 1/4, सो हाफ कर दो. सो डायरेक्टली बाइसेक, ऑप्शन सी. ठीक है, अभी चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. ठीक है, एन एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज टू वन एंड इज मेड टू वाइब्रेट इन इट्स सेकंड ओवरटोन क्लोज्ड एट वन एंड. अब जब वन एंड होता है ना तो नॉर्मली हमारा NV/4L होगा. ये एन ऑड होगा, मतलब 1, 3, 5 ये सब. सेकेंड ओवरटोन मतलब इसके बाद वाले, तो सेकेंड मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड मतलब n = 5 वाला है. ठीक है, तो आपका 5V/4L इज़ गिवन बाय 440 है ना. यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे ये सब वैल्यूज पुट करने से तो आपका L 15/16 आ जाएगा. तो ये ऑप्शन तो सही है. बट मतलब ऐसे क्वेश्चंस में डोंट जज, लाइक डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन्स. बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस भी देख लो. मैक्सिमम प्रेशर एट ओपन एंड इज, अभी ओपन एंड में जो होगा, ठीक है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो एकदम मैक्स होगा, एंटी नोड बनेगा इधर. ठीक है, ऐसा करके आएगा. पर जो प्रेशर होता है ना उसका π/2 का फेज़ होता है. इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा नोड बनेगा फॉर प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस अगर यहाँ पे अगर डेल्टा P अगर 0 हो गया तो नेट प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, जो मीन प्रेशर था, मीन प्रेशर कितना P0. तो आपका मैक्सिमम प्रेशर हो मिनिमम प्रेशर हो, प्रेशर तो सेम ही रहेगा P0. सो ये भी सही है.
लेंथ इज़ गलत, तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ एक ऑप्शन है, सो दैट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो डोंट जंप टू कंक्लूजन, सारे ऑप्शन देख लिया करो। तो ऑप्शन क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 19, a machine gun is mounted on a tank moving at a speed of this, moving towards a target with the gun pointing in the direction of motion। मतलब गन का जो वेलोसिटी होगा, जो भी वेलोसिटी है, सपोज वी, मतलब गन से जो बुलेट निकलेगी, वी बुलेट प्लस वी ऑफ मतलब जो भी ये है टैंक, ठीक है, होना पड़ेगा। द मजल स्पीड इक्वल्स दिस मच इफ एट द टाइम ऑफ फायरिंग द टारगेट इज दिस, ओ नहीं सॉरी, मजल स्पीड इक्वल्स द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। If at the time of firing the target is 500 meter away from the tank, then अच्छा who arrives first is the question, ठीक है। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है बस वो देख लेते हैं। साउंड की कितनी है 340, बुलेट की कितनी होगी 340 प्लस स्पीड ऑफ टैंक विच इज़ 360, तो क्लियरली बुलेट विल रीच बिफोर साउंड, तो साउंड अराइव्स लेटर देन द बुलेट, ठीक है बस। तो 19 का ए होगा। मतलब ये एकदम डायरेक्ट था, बस कंफ्यूजिंग बात मतलब शायद ये होती है कि लोग कभी कभी सोच रहे थे ना कि साउंड कैसे मतलब बाद में आएगी, तो वो सब आइडिया नहीं है। तुम बस जस्ट लुक एट द फैक्ट्स, लुक एट द वैल्यूज़, इट्स ऑब्वियस फ्रॉम हियर दैट द बुलेट विल रीच बिफोर साउंड, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑप्शन ए, ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, जो आ रहा है वो आंसर होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, a wave represented by the equation this is superimposed with another to form a stationary wave at that point x equals 0 is a node। तो x equals 0 पुट कर लो यहाँ पे, मतलब एट ऑल t 0 नहीं चाहिए, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 0, ठीक है। तो आपका क्या होगा a sin ओमेगा t, ये एट ऑल पॉइंट्स पे अगर हम ऐड करेंगे, इसको भी 0 पुट कर देते हैं, तो a cos ओमेगा t है हमारा पहला वेव, ठीक है। ऑप्शंस में क्या क्या है, a sin ओमेगा t माइनस a cos ओमेगा t माइनस a cos ओमेगा t और माइनस ए साइन ओमेगा टी, ये हमेशा ऐड करने से ज़ीरो होना है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। अभी अगर आप नोटिस करो तो ये ऑप्शन बी जो है और ऑप्शन ए जो है एग्जैक्ट माइनस है, तो सुपर इम्पोज करने से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वो मतलब ज़ीरो वेव हो जाएगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं एट ऑल पॉइंट्स एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। बट हमें चाहिए कि एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पर जाके नोड बने, नॉट एट ऑल पॉइंट्स, तो ये तो होगा नहीं, क्लियरली ऑप्शन सी होगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो नोड तो दोनों में बन रहा है ना, बट द थिंग इज़ क्योंकि ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है ना, यहाँ पे तो वेव बनेगा नहीं, स्टैंडिंग वेव वाला सब तो मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना। तो व्हाट वी वांट इज़ दैट वेव बने और नोड एक्स इक्वल 0 पे बने, तो वो तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप मतलब वैल्यू पुट करने से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, तो ट्राई टू एक्सप्लॉर दैट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कार्नो इंजन हैज़ एफिशिएंसी 1/5, सो T2/T1 इज़ 1/5, मतलब T2/T1 इज़ 4/5, ठीक है, सॉरी हाँ। एफिशिएंसी बिकम्स 1/3 व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस बाय 50। अच्छा और एक बात, ये केल्विन हो, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बोला है, डिग्री हो मतलब डिग्री सेंटीग्रेड हो, केल्विन हो, सेम वैल्यू होती है, ठीक है। हम जनरली यहाँ पे केल्विन में डील करते हैं, बट यहाँ पे अगर डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड बोला ना, तब भी डिफरेंस इन टेम्परेचर जो होगा 50 सेंटीग्रेड बोलो 50 केल्विन बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक है। क्योंकि वो +273 होता है ना, तो वहाँ पे भी +273 होता है, डिफरेंस निकालोगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा ना, तो वही है। तो ठीक है, हम जनरली केल्विन में डील करते हैं, चलो तो चलो करते हैं। हाँ, तो अभी तुम्हें क्या बोला है, 1 माइनस T2 माइनस 50/T1 अगर होता तो 1/3 होता है ना, सो T2 माइनस 50 इज़ गोइंग टू बी 2/3, इसकी जगह 4/5 डाल देते हैं, सो यहाँ सॉल्व करने से T1 की वैल्यू डायरेक्ट 375 केल्विन, दैट इज़ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, सो ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे चलता है। In an adiabatic process that pressure and temperature monatomic gas later ओके फाइन, हमें सी की वैल्यू चाहिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होती है, वी की आइडियल गैस इक्वेशन मार दो, पी वी इक्वल्स एन आर टी, तो वी इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी, तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, पुट कर दो यहाँ पे, पी टी की पावर गामा 1 माइनस गामा मस्ट बी कांस्टेंट, पी टी की पावर गामा बाई 1 माइनस गामा मस्ट बी कांस्टेंट, और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुछ चाहिए ना, सो पी इक्वल्स टू कांस्टेंट टू टी की पावर गामा बाई गामा माइनस 1, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। और गामा फॉर मोनोटोमिक गैसेस 5/3, सो 5/3/2/3, सो ये डायरेक्टली 5/2 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है। देखो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था यार, इसमें मतलब कितना मुझे भी कितना सेकंड लगा, तो बहुत ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सीधा वैल्यू पुट करना है, आंसर मिल जाएगा, मूव ऑन, ठीक है। ओके सो क्वेश्चन 23, ठीक है। एथेन रॉड हैज चार्ज Q
डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ L, तो इसको हम dq/dx लिख सकते हैं और dx को हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट x, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, एक डिस्टेंस x पे हम स्मॉल लेंथ dx पकड़ते हैं, ठीक है। उस पर चार्ज dq होगा, तो इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, dF कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं, k q नॉट इंटू dq डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है x, तो x², ठीक है। इंटीग्रेट कर सकते हैं, x को हम यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि चार्ज बॉडी वहाँ से है। सो a से लेके a प्लस एल तक जाएगा, यहाँ पे a है और यहाँ तक a प्लस एल होगा, ठीक है। और a पे जब हम करेंगे तो फोर्स 0 होगा और यहाँ पे सपोज मतलब ड्यू टू द टोटल बॉडी f होगी जो हमें निकालनी है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, f कैन बी रिटन एज k q नॉट -1। अच्छा और एक बात, dq जो है हम उसको q/l इंटू dx लिख सकते हैं, सो q/l इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको इंटीग्रेट करने से -1/x हो जाएगा, ठीक है। तो -1/x को ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो -1/a प्लस एल प्लस 1/a आ जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर हम करेंगे तो इसको l डिवाइडेड बाई a प्लस एल लिख सकते हैं, एल कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज़ व्हाट वी गेट, k q नॉट k डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस एल। सो कोई ऑप्शन मिल रहा है k q, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो 23 का सी होगा, डन। अभी नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 24। A charge q is placed at the mouth of a conical flask. The flux of the electric field to the flask is, अच्छा तो फ्लास्क कुछ ऐसा है। What they meant by this sentence, मतलब इतना ठीक से क्लियर नहीं बोला है कि ऐसे है चार्ज, मतलब एट द माउथ है ना, तो चार्ज एक मतलब कुछ रेडियस आर होगी, तो एट द माउथ होने से हाफ चार्ज अंदर होगी हाफ बाहर, तो हमारा जो होता है फ्लक्स इज गिवन बाय q/ε0, जो q अंदर होती है, तो इसका चार्ज q है, तो हाफ अगर अंदर है तो अंदर कितनी होगी q/2, तो डायरेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। तो लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं थी बट दिस इज व्हाट दे मेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द पोटेंशियल फंक्शन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ठीक है। तो हमें पता है E इक्वल्स टू -dv/dr होगी, ठीक है। मतलब dx करोगे तो i कैप पे आएगी, dy करोगे तो j कैप एंड dz करोगे तो k कैप, ठीक है। तो करते हैं, dx करेंगे तो क्या आएगा 1/x² प्लस y² प्लस z² इंटू ट्वाइस एक्स आई कैप, सेम थिंग विद y कैप j कैप z कैप, मतलब j कैप k कैप, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और मैग्नीट्यूड पूछिए, सो ट्वाइस इंटू √x² प्लस y² प्लस z² डिवाइड बाई x² y² z² आ जाएगी, तो कैंसिल करने से क्या आ जाएगा 2/√x² y² z², तो ऑप्शन ए, ठीक है। अगेन सॉरी टेढ़ा लिख रहा हूँ, टैब पे लिख रहा हूँ ना तो थोड़ा उल्टा हो जाता है, जस्ट बेयर विथ मी, ठीक है। बस लॉजिक समझ लिया हो जाएगा। क्वेश्चन 26, वोल्ट मीटर्स V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। V1 रीड्स 80 वोल्ट्स, हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम पर वोल्ट, तो V1 जो है मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। ये एक V1 होगा, ये एक V2 होगा और यहाँ पे कुछ लाइन वोल्टेज होगी, ठीक है। ये जो वोल्टेज होगी ना यहाँ पे कुछ सपोज कोई सेल है, वो लाइन वोल्टेज है, हाँ वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ V2 कितना है 32 किलो ओम्स, V1 का रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम पर वोल्ट और है इसका 80, सो 200 इंटू 80 कितना हो जाएगा 16 किलो ओम्स, तो टोटल आपका कितना हो गया 48 किलो ओम्स, ठीक है। और बोला है V1 का जो वोल्ट है वो 80 वोल्ट्स है, तो सपोज ये टोटल V है, तो सीरीज़ में है, तो इसके अक्रॉस V1 कितना होगा, V1 विल बी गिवन बाय 16/48, दैट इज़ 1/3 ऑफ V, और V1 कितना बोला है 80, तो V कितना हो जाएगा 240, सो सीधा ऑप्शन ए, ठीक है, डन। ओके, सो क्वेश्चन 27, ठीक है। इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन बिलो वायर AB इज नॉट चेंज, रेजिस्टेंस हैज डिक्रीज, बैलेंस लेंथ x विल, ठीक है। तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, AB/AB प्लस R इंटू वी होगी, ठीक है। R को इन लोगों ने डिक्रीज़ कर दिया ना, तो R को डिक्रीज़ करेगा तो ये वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी सपोज पहले यहाँ पे 5 वोल्ट थी तो x था ना, अभी ये 10 वोल्ट हो गया, तो 5 कहाँ थोड़े कम पे मिलेगा, तो x विल डिक्रीज़, तो ये तो सही है। एंड रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि रीज़न ये है कि ये जो C2 का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैलेंसिंग लेंथ जो भी होगा वो C2 ही वैल्यू होगी, मतलब इसका पोटेंशियल C2 है तो इतना जो होगा उसका पोटेंशियल भी C2 होगा, और क्योंकि C2 कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो हम कुछ कमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि x विल डिक्रीज, ठीक है। और वही ऑप्शन स्टेटमेंट 2 में बोला गया है, एट द बैलेंस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D ड्यू टू सेल C1 इक्वल्स टू AMF E2 ऑफ सेल C2, तो ये भी सही है और इनफैक्ट यही एक्सप्लेनेशन है।
तो बोथ आर ट्रू एंड इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 28, a 60 watt bulb is connected in parallel with the room heater. This connection is connected across the mains, ठीक है। across the mains मतलब ये भी parallel ही होता है। if the 60 watt bulb is replaced by 100 watt bulb, the heat produced by heater will remain the same। हाँ, क्योंकि सारा पैरेलल में है ना, तो अब यहाँ पे जो भी करो इसका तो रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो हीट कितना होगा वी स्क्वायर बाई आर, तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। when resistances are connected in parallel across the mains, the heat produces inversely proportional to resistance। हाँ ठीक है, फाइन, सही है, तो पैरेलल में है, तो बोथ आर राइट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन ए, ठीक है। ना क्वेश्चन 29, a wire is wound in the form of spiral with 21 turns, the inner outer radii are this much, what is the magnetic field at the center when a current of 2 ampere passes through it। ठीक है, तो स्पायरल मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस का एक रेडियस पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो मतलब एक रिंग जैसा पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है, डी एन मतलब ये जो डिस्टेंस लिया ना इसका कुछ डी एन होगा ना, तो डी एन बाई डी आर कैन बी रिटन एज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 21, और डी आर कितना है 8 - 1 मतलब 7 बाई 100, क्योंकि सेंटीमीटर में करनी है तो ये 300 हो गया, ठीक है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर चाहिए, तो म्यू नॉट एन आई डी बी जो होगा म्यू नॉट डी एन आई डिवाइड बाई ट्वाइस आर, क्योंकि ये सब फिक्स है, बस डी एन की दिक्कत है। डी एन को हम क्या लिख सकते हैं 300 इंटू डी आर, तो इसको 150 इंटू म्यू नॉट डी आर बाई आई, ठीक है। तो आई को यहाँ पे लिख सकते हैं, और आई कितना है 2 एम्पियर, सो बिठा देंगे 300 म्यू नॉट डी आर बाई आर। तो हमें क्या चाहिए, नेट बी चाहिए, तो बी को इंटीग्रेट कर देंगे, कितना आएगा 0 से लेके बी तक जाएंगे, तो बी विल बी गिवन बाई 300 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू एल एन, R2 बाई R1 होगा, R2 कितना है 8, R1 कितना है 1, सो 8 हो गया, सो 12 पाई 10⁻⁻5 ln 8, 36 है, तो इसको हम 2 करके 3 बाहर निकाल लेंगे, सो 36 पाई ln 2 10⁻⁻5 ln 2, हाँ तो ऑप्शन बी, ठीक है। सो डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय हाई स्पीड down the axis of cathode ray, ठीक है। The particle passes through uniform field in which it experiences force F. If the potential difference is increased to 2, the electron will now experience a force। अच्छा, तो ठीक है, फाइन। सो F मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो और हमें बोला ट्रांसवर्स है, तो क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90, तो क्यू वी बी हो गया, ठीक है। तो अभी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, बस वी पे। वी कितना होता है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर जो आपकी के ई होती है ना, तो वो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है ट्वाइस एम ई वी होती है, ठीक है। तो मतलब ये वी जो है वो वोल्टेज है, और ये जो है छोटी वी वेलोसिटी है, तो वी क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी हो गया, तो इसको हम बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी बोल सकते हैं, जहाँ पे वी पोटेंशियल डिफरेंस हो। ओरिजिनली वी था, अभी डबल हो गया है, तो एफ डैश कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ एफ, तो ऑप्शन सी, ठीक है, डन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, वन लाइनर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 31, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूव्स विद वेलोसिटी दिस मच इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ लोरेंट्ज फोर्स। भाई बहुत आसान है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी करनी है, वी क्रॉस बी कर लो, कितना आ रहा है ए बी इंटू के कैप माइनस ए सी इंटू जे कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालनी है तो निकाल लो, क्यू ए √/b² प्लस सी स्क्वायर, बस ऑप्शन सी, डन। वन लाइनर, इसमें भैया हार्डली फ्यू सेकेंड्स लगना चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल ऑफ ए टेंशन गैल्वेनोमीटर आर डबल्ड, द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन फैक्टर के विल बी। अच्छा, एक बात, हाँ ये रिडक्शन फैक्टर के तो भाई मुझे कभी मिली नहीं थी, बस आई गेस वो एलन के वो फॉर्मूला बुकलेट्स होता ना, तो उसमें एक बार दिखी थी। तो जनरली इसके क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट जस्ट इन केस आ जाए, आप बस ये एक्सप्रेशन याद रख लीजिएगा, डिराइवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ट्वाइस आर एच डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन इक्वल्स टू योर के, ठीक है। के इज़ बेसिकली रिडक्शन फैक्टर। अभी क्या बताया, नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस दोनों को डबल कर दिया, रेडियस को मतलब सॉरी, हाँ ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आर बाई एन, ठीक है। आर को आपने डबल कर दिया, एन को भी आपने डबल कर दिया, तो नेट कितना होगा, जो आर बाई एन था वही सेम रह जाएगा, तो के विल बी के इटसेल्फ, डन, ठीक है। So here you will just basically have to remember this expression कि k is given by that reduction factor is given by twice r h divided by mu naught n, तो आपका k dash कितना होगा
ट्वाइस आर एच बाई म्यू नॉट एन, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो इक्वल्स टू के, तो ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ए यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ सर्कुलर रीजन, ठीक है, डायरेक्टेड ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी, ठीक है। तो अभी हमें ये पता है ना कि अगर EMF है तो उसको माइनस ई डॉट डी एल लिख सकते हैं, एट द सेम टाइम, या फिर वोल्टेज हो उसको माइनस डी फाई बी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव। डी एल जो है वो यहाँ से लेके हम क्या करेंगे, डी एल लेके उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो 2s पाई आर आ जाएगा, तो उसको लिख देते हैं। सो लेट्स राइट इट डाउन, 2 पाई आर लिख दिया, ठीक है। अभी डी फाई बी बाई डी टी, फाई बी को क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, है ना, और इनटू द प्लेन बोल दिया तो बी ए हो जाएगा, ठीक है। ए तो भाई कांस्टेंट है, बस डी बी बाई डी टी होगा, तो ए क्या होगा पाई, अच्छा और एक बात, ए जो होता है वो इफेक्टिव एरिया होता है, एरिया थ्रू विच फील्ड पासेस, कितना होगा, पाई ए स्क्वायर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। पाई पाई कैंसिल, तो ए स्क्वायर बाई ट्वाइस आर आ जाएगा, ठीक है। और डी बी बाई डी टी क्या है, कुछ टाइम वेरिंग है, ठीक है। तो व्हाट डू वी वांट, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, अच्छा ठीक है। तो ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ से ये कांस्टेंट ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया अगर हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करें, तो डिक्रीजेस एज 1 बाई आर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन एन इंडक्टर द करंट आई इज दिस मच, ठीक है, इफ़ EMF इंड्यूसेस दिस मच द पावर सप्लाइड, अच्छा पावर सप्लाइड बोला है, ठीक है, नॉट द पावर रिसीव्ड बाय इंडक्टर। पावर रिसीव बाय इंडक्टर कुछ और होता है, जब पावर सप्लाई करते हो ना कुछ पावर लॉस हो जाता है और बाकी पावर रिसीव होता है, हमें बस सप्लाई पूछा है। सप्लाई कितना होता है, VI होता है डायरेक्ट, ठीक है। V कितना बोला 10 मिली वोल्ट्स, I कितना बोला 5 + 16 इंटू टी, टी कितना है, T इक्वल्स टू 1, तो ये 21 हो गया, सो 210 मिली वाट्स हो गया, और 0.21 वाट्स, सीधा ऑप्शन बी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 35, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पावर डिफरेंस इज दिस मच बीइंग द वेवलेंथ, ठीक है। इफ आई नॉट, ये आई नॉट है, ठीक है, डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस इज इक्वल टू, भाई ये तो लास्ट क्विज का करा, लास्ट टेस्ट का कराया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन है। डी फाइव बाई डी एक्स लिखा लो, ट्वाइस पाई बाई लैम्डा होती है, डी एक्स लैम्डा बाई 6 बिठा दो, पाई बाई 3 होती है, तो आपका फेस डिफरेंस कितना है, ये आ गया। आई मैक्स जो सेंटर पे होगी, जो यहाँ पे आई नॉट बोला उसको हम आई एम बोलेंगे, ठीक है। 4 आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 होता है, वहाँ पे 0, तो 4 आई नॉट, और हमारा आई कितना 4 आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, ये पाई बाई 6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये करोगे तो आई एम हो जाएगा। हमें बेसिकली वो पूछा है मुँह पे 3/4, ठीक है, डायरेक्ट। ओके फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 36, थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस मच, फोकल लेंथ गिवन है, एक्स एज कनकेव लेंस ऑफ दिस मच, ठीक है, व्हेन डिप्ड इन लिक्विड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज, ठीक है। लेंस मेकर्स फार्मूला, इनिशियली ये एयर में है, फाइनली लिक्विड में होगी, तो पहला केस 1 में क्या होगा, 1/f इज गिवन बाई ट्वाइस म्यू माइनस 1/r। फाइनल केस में क्या होगा, सपोज लिक्विड का म्यू डैश है, बाई एफ डैश मान लो, ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो एफ डैश कितना है, अभी कनकेव लेंस बोल दिया तो -0.5 हो जाएगी, और ओरिजिनल एफ कितना है कन्वेक्स का 0.2, तो एफ कितना है 0, हाँ फोकल लेंथ बोला 0.2, ठीक है। रेडियस आर की हमें पता नहीं, ठीक है। तो म्यू जो है वो 1.5 है, तो -1 करोगे तो हाफ हो जाएगी, तो ये 1/r हो गया, तो 1/r की वैल्यू 1/0.2 हो गई बस। तो इसको हम ऐसे 0.1 लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर ही रहने दो, और इसको हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस म्यू डैश बाई 5 इक्वल्स म्यू कितना है 3/2 माइनस म्यू डैश, ठीक है। तो 1 कर देंगे तो 4 म्यू डैश बाई 5 इज 3/2, म्यू डैश मस्ट बी इक्वल टू 15/8, तो वही पूछा था, दैट्स योर डायरेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन 37, ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक्ट्स लाइक कनकेव मिरर ऑफ दिस मच, ठीक है, व्हेन सिल्वर फ्रॉम इज प्लेन सर्फेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज गिवन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस विल बी, ठीक है। तो देखो हाँ ठीक है, सपोज हम अभी ऐसा कुछ करें कि हमारे पास एक लेंस है, इसको ऐसे कर्वेचर कर देना, सिल्वर कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो मिरर जैसा काम करेगा, तो -1/f, मतलब ऐसे केसेस में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, -1/f इज़ गिवन बाय द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। अभी ये मिरर जैसा काम करेगा तो उसका फोकल लेंथ ऐसे कुछ लिखा जाता है, ठीक है। ट्वाइस बाई FL लेंस जो है, क्योंकि यहाँ से 2 बार रिफ्रैक्शन होगी और रिफ्लेक्शन एक बार यहाँ से होगी, तो 1/FM, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन कन्वेंशन एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जैसे अगर ये कनकेव है तो यहाँ पे माइनस में आना पड़ेगा, ठीक है, कन्वेक्स होता तो पॉजिटिव आता, तो वो सब डालना है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, बात कुछ ऐसी होगी, कन्वेक्स एंड प्लेनो कन्वेक्स यहाँ से सिल्वर कर दिया, ठीक है, तो -1/FM ट्वाइस बाई FL -1/FM। ये मिरर जो है सिल्वर्ड है, उसका प्लेन वाला साइड मिरर्ड है, मतलब सिल्वर्ड है,
तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी 0, ठीक है। तो ये चला गया, तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद दिस। तो -1/fm, तो fm कितना बोला है, इट एक्ट्स लाइक ए कनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना होगा -0.2, तो 0.2 हो गया। तो फोकल लेंथ कितना हो गया 0.4 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अभी फोकल लेंथ इसका ऐसा हो गया, अभी इसका फोकल लेंथ कैसा आएगा 1/f, अगेन लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज गोइंग टू बी गिवन बाई म्यू माइनस 1/r प्लस 0, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैन बी रिटन एज r बाई म्यू माइनस 1, तो लिख देंगे r बाई म्यू माइनस 1, म्यू अगेन हाफ है तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, r विल बी 0.2 मीटर्स, तो सीधा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। एज्यूम दैट द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन एज सच, ठीक है। यूज दिस प्लॉट टू चूज द करेक्ट चॉइस। पहली बात, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल और ओवरऑल उतनी कम एनर्जी, मतलब एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर विथ मास नंबर्स लाइंग इन रेंज 1 से 50 का फ्यूजन करोगे तो कितना आएगा, 2 से लेके 100 तक जाएगा मैक्स। एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी तो बढ़ नहीं रहे, तो नो स्टेबिलिटी, सो नो एनर्जी रिलीज। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर विथ मास नंबर्स लाइंग इन रेंज 51 से 100, सो वो 102 से लेके 200 तक जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी विल डेफिनेटली बी रिलीज, सही है। तो इसका ऑप्शन डायरेक्टली आपका हो गया 38 का बी। अभी फिर भी थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस लाइंग इन मास रेंज ऑफ 100 से 200 विल रिलीज एनर्जी व्हेन ब्रोकन इन 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स। 100 से 200 को सेपरेट करोगे तो 0 से 50 पे, सॉरी 50 से 100 पे गिरेगा, सो बाइंडिंग एनर्जी घट रही है तो रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब होगी, तो ये तो गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस लाइंग इन मास रेंज 1 से 50 का फ्यूजन करोगे तो और घटेगा ना, तो चांस ही नहीं एनर्जी रिलीज होने का, तो ऑप्शन बी होगा क्लियरली, ठीक है। तो इट्स जस्ट गुड प्रैक्टिस कि आप सारे ऑप्शंस चेक कर लिया करो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। द रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है, ट्रांजिशन फॉल्स ऑन मेटल सर्फेस, तो इसका अगर हम एनर्जी देखें 13.6, 1/4 - 1/9 विच इज़ 1.89 EV, ठीक है। फिर द इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू एंटर मैग्नेटिक फील्ड दिस मच इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ इज दिस। लार्जेस्ट मतलब V क्रॉस B जो होगा, मतलब θ90 तो VB होगा, ठीक है। तो QBR इक्वल्स टू MV सीधा हम लिख सकते हैं जब घूमेगा, ठीक है। तो R के पास हम R का वैल्यू, ठीक है, फाइन। वर्क फंक्शन द मेटल इज क्लोज टू, मतलब इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, उसको अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वर्क फंक्शन आ जाएगा, बिकॉज जो भी एनर्जी इंसिडेंट है माइनस वर्क फंक्शन विल गिव यू दिस एनर्जी ना, तो सेम थिंग वर्क्स कन्वर्सली एज वेल, ठीक है। तो इसका हम एनर्जी निकालने के लिए हमें अभी हमारे पास P है ना, तो हमें E चाहिए। E कैन बी रिटन एज P²/2m शायद, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। तो सीधा बिठा देंगे हम, तो ये पुट करने से हमारा जो वैल्यू आएगा वो इट विल कम आउट समवर्ड अराउंड 0.8 के आसपास आता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास Q है, B है, R है, M है, 2 तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो वो हम स्क्वायर करके पुट कर लेंगे, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो 0.79, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.8 कह सकते हैं। तो आपका जो वर्क फंक्शन होगा इट विल बी एनर्जी इंसिडेंट माइनस काइनेटिक एनर्जी which is 1.89 minus 0.8 which is 1.09, approximately 1.1 EV, तो ऑप्शन डी, ठीक है। सो क्वेश्चन 40, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए। तो ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर इन CB मोड विद ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच, करंट गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज दिस मच, इनपुट रेजिस्टेंस इज दिस, द वोल्टेज गेन एंड पावर गेन रेस्पेक्टिवली आर। दो वैल्यूज पूछे तो यहाँ पे कोमा होगा, ठीक है, ये कोमाज है, ठीक है। तो वोल्टेज गेन कैसे लिख सकते हैं हम, तो वोल्टेज गेन मतलब क्या, V out by V in, तो IR बाई IN, ठीक है। तो ये तो हमारा करंट गेन हो गया, और ये हमारा RO कितना है 5000 है, और इनपुट कितना है 70 है, ठीक है, और गेन कितना है 0.98 है। तो इसको हम बेसिकली 5 × 98/7 लिख सकते हैं, उसको 14, तो ये 70 हो गया, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन है डायरेक्ट हो गया, बट कन्फर्मेशन के लिए आप 68 का भी कर सकते हो, मतलब पावर गेन को हम क्या करेंगे VG × IG लिख सकते हैं, ठीक है, सेम ही होगा। तो VG आपका कितना है 70, IG आपका कितना है 0.98, पुट कर दो कितना जाए 68.6, तो ऑप्शन ए, ठीक है, फाइन। सो दैट्स द एंड ऑफ इट, ठीक है। तो हियर आई वुड लाइक टू से समथिंग कि ए फ्यू क्वेश्चंस ना वर लिटिल बिट हायर लेवल, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर पाओगे, बस थोड़ी मतलब ज़्यादा मेहनत लगती होगी, ठीक है। तो इफ़ यू गो विद द स्पीड दैट आई सजेस्टेड ना, मतलब अगर 40 मिनट में नॉर्मल बिट सेट पेपर हो रहा हो तो इसको आप मतलब मैक्स टू मैक्स 50 मिनट्स लेंगे आपको, आप आराम से कर पाओगे। और सपोज एक ऐसा सिनेरियो कि आपसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है ना, सो अगर 2-3 क्वेश्चन है ना, आई वुड से तुक्का मार दो एंड देन मेकअप फॉर इन द बोनस सेक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, बोनस सेक्शन मतलब ट्राई करना कि तुम अटेम्प्ट करो ही,
बिकॉज इफ़ यू अटेम्प्ट दैट ना, मतलब तुम्हारे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि भाई कैलकुलेशन ठीक रखो, स्पीड ठीक रखो, एक्यूरेसी ठीक रखो, कंसेप्ट तो भाई एकदम क्लियर रखो. होपफुली इन लाइक विद द नेक्स्ट वीक मैं एक ऐसा ट्राई करूँगा कि मतलब वो होता है ना कि जो फॉर्मूला का शीट्स होता है ये सब टाइप का कुछ. सो आई वुड ट्राई टू डू समथिंग लाइक, आई एम नॉट श्योर येट. तो होपफुली वो कर सकूँ. तो उससे आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, टाइमिंग मेंटेन करनी है और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है. तो इफ़ यू डू दैट, मतलब एकदम बढ़िया से आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा. एंड इन केस कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लाइक दो तीन ऐसा रह जाए ना, तो का मार दो और फिर एक्स्ट्रा बोनस वाले सेक्शन में मेकअप कर लेना. ठीक है, वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ट्रस्ट मी. एंड हाँ वही है, इट एक्ट्स एज अ गेम चेंजर. सो प्रिपेयर करो, अभी तो एग्ज़ाम आ भी रहा है. इफ़ आई डू लाइक, अगर सपोज़ मैं नहीं कर पाता वो फॉर्मूला वाले सीरीज़, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे ना, अरिहान का भी होगा, एरन का भी होगा, रेजोनेंस का भी होगा, वो फॉर्मूला बुकलेट्स वो सब. तो वो वाले फार्मूलाज में जितने भी लिस्ट है ना, तो इंपॉर्टेंट वाले वो लोग मेंशन भी करके रखते हैं. तो ट्राई टू मेमोराइज ऑल ऑफ दैट. और कुछ कुछ एक्स्ट्रा होता है, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एक ये रिडक्शन फैक्टर वाला आ गया था ना, तो जिसमें आपका वो आ गया था ट्वाइस आर एच बाई म्यू नॉट एन, ये वाला फैक्टर आ गया था ना, ट्वाइस आर एच बाई म्यू नॉट एन इक्वल्स टू के. तो ये मतलब फार्मूला होती है भाई, मतलब इसका डेरिवेशन बहुत ही हेवी होता है, मतलब थोड़ा अलग से होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतना यूज़ में भी नहीं आते. तो वही मतलब ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे इमीडिएटली सॉल्व शायद ना हो. सो इन सच केसेस मतलब आई वुड से मेक एन एजुकेटेड गेस एंड मेक अप फॉर इट इन द बोनस सेक्शन. ठीक है, so that's all from me today. I hope I could help you out, and if you need anything else, and yeah, I apologize for the for not being able to write in a straight line क्योंकि टैब में लिख रहा हूँ यार, so sorry, मना लो यार. So yeah, that's pretty much it. Let me know if there is any other way in which I may help you, and other than that, that's all from me today. Thank you.